بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ خواتین و حضرات، ہم گزشتہ روز سورۃ صاد 23ویں پارے پہ تھے اور جو مضامین پہ گفتگو ہوئی وہ ان دو فرشتوں کا حضرت داؤد علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے پاس آنا تھا اور ایک فرضی سوال دنبیوں کے حوالے سے پوچھنا تھا، اور ان کا جواب حضرت داؤد علیہ نبی الکریم علیہ السلام نے عطا فرمایا اپنے رب کی مہربانی اور فضل سے کہ جس کے پاس 99 دنبیاں ہیں وہ 99 کا مالک ہے، اور جس کے پاس ایک دنبی ہے وہ اس کا مالک ہے، اور دوسرے کی حق ملکیت میں مداخلت نہ کرے۔ اور اس پہ مفسرین نے یہ بتایا کہ یہ ایک اور زوجہ کا اضافہ کرنا اس کے حوالے سے معاملہ تھا۔ تو اس پر یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ حضرت داؤد علیہ نبی الکریم علیہ السلام کو جب اس واقعے کے بعد توجہ ہوئی تو آپ نے اس ارادہ سے اجتناب فرمایا جو آپ نے ایک زوجہ کے اضافہ کے لیے طریقہ کار طے کیا تھا، اور مفسرین کے نزدیک ان کی فوج کے ایک افسر کو وہ کسی مہم پر بھیج کر یہ صورتحال ممکن فرما رہے تھے۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام نے جب یہ رجوع لائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا و خوشنودی عطا کی، اور اس ارادہ سے رجوع لانے پر اپنا فضل اور احسان اور مہربانی عطا کی، یہاں مفسرین کرام یہ بتاتے ہیں کہ اس صورت فرضی مفروضہ پیدا کر کسی بات کو توجہ دلانے کی، اس فرضی صورت کو ممکن کرنے کو کے بارے میں آج بھی قاری قرآن کے لیے یوں ہے کہ وہ اگر اپنے سے بزرگ ہستی کے سامنے اس کی کسی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو تو وہ ایک میتھمیٹیکل جو سپوز ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ x = AB، تو اس طرح جو ہم فرضی بات کر کے تو اس سے فارمولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تو واپس آئیے قرآن عظیم کی منشا مفسرین گرامی کے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح فرضی مسئلہ بیان کر کے تو توجہ دلا لینی وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کسی صاحب مرتبہ کو اس کی کسی بات پر اس انداز میں ٹوکا جائے جو عامیانہ ہو۔ یہاں سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ یہ جو صلحاء اور اولیاء ہوتے ہیں اور جن کو آج کل عام اصطلاح میں اہل اللہ کو بابا جی کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ جو بابے ہوتے ہیں اگر ان کے ہاں بھی کوئی بات ایسی ہو تو زبان درازی کرنا اور تان کی زبان اختیار کرنا اور ان کے ساتھ بد تہذیبی اور بدتمیزی سے ان کے پیٹھ پیچھے یا سامنے بولنا، یہ بول اور یہ انداز بابوں پہ تنقید کا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن عظیم نے رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ کچھ ایسا ہو جو خلاف اولا ہو، جائز ہو لیکن خلاف اولا ہو، اور اگر دوسری صورت میں یہ تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے جو انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن دوسری صورت میں اگر غیر انبیاء ہوں تو اس صورت میں بھی فرضی مسئلہ کی صورت میں توجہ دلانا ہی مناسب ہے، جیسا کہ قرآن عظیم نے یہاں پہ ایک طریقہ کار اختیار فرمایا، اور فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسے ہم نے بیکار نہیں بنایا، اور کافروں کے لیے خرابی بتائی، اور کہا کہ جو ایمان لائے وہ اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے، پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں، ایسا تو نہیں ہے، یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والا تھا۔ اور پھر سلیمان علیہ نبی الکریم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ انہیں وہ ان مضامین سے یہ مترشح ہوتا ہے، اور لفظ گھوڑے وہ خود وہی کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ گھوڑے عطا کیے کہ جو نگاہ کو بھلے لگتے تھے، اور وہ جہاد کے لیے تیاری اور
उनका जिस्म और उनकी पिंडलियां और उनकी पीठें वो काबिल तवज्जो अता की। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि उन्होंने कहा कि इनको दौड़ाओ, भगाओ और वापस लाओ और फिर हम इनको देखें, और फिर उनसे खुश हुए। और फिर हजरत सुलेमान अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया कि हमने उनके तख्त पर एक बेजान का लोथड़ा डाल दिया, यानी औलाद की सूरत में नबी हजरत सुलेमान अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तख्त पर। और फिर इस पर उन्होंने कहा कि सुल्तनत तेरी है और या रब तू मुझे बख्श दे। मुफस्सरीन का कौल ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अंदाज में ये फरमाया कि आज वो मुतअद्दिद अपनी बीवियों पर दौरा फरमाएंगे और उसके नतीजे में हर एक से अल्लाह ताला जिहाद करने वाला, ये घोड़ों को देखकर ना जिहाद की एक सूरत आपके सामने आई हुई थी, तो उस जिहाद करने वाला एक फर्जंद रब्बुल आलमीन अता करेगा। तो उस के बजाय रब्बुल आलमीन की मंशा ये थी कि इनको इस तरह आजमाए, और ये एक अपाहज बेटा जो है वो वहां पे रख दिया। और कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बस में तो हवाएं कर दी और उनको बड़ा ताकतवर किया, और रब ताला ने अपनी अताओं का इजहार किया। और अताओं का इजहार दरअसल कारी कुरान की तवज्जो चाहता है, और किसी की पैदाइश का होना और किसी की पैदाइश का ना होना, और किसी का ताकतवर पैदा होना, और किसी का साहिब मकाम तशरीफ लाना दुनिया पे, और किसी का वैसा ना होना, दूसरी तरह का होना, ये रब ताला ने अपनी मंशा इरशाद फरमाते हुए फिर साथ ही इन आयात में इरशाद फरमाया कि हवाएं उनके बस में कर दी, वो नर्म नर्म चलती जिस तरह वो हुक्म देते, और दियो उनके बस में कर दिए जो मामार थे, यानी तामीर करने वाले थे, और तामीरात के माहिर दियो उनके बस में किए, और बेड़ियों में जकड़े हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बस में किए। ये उनकी अजमत और बड़ाई की बातें कुरान अजीम ने दोहराई और कहा कि अपने एहसान से वो सब कुछ उन्हें अता किया। और फिर ये अताएं बयान करके कहा कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया कि वो जिसे चाहे रोक रखें और जिस तरह से उनसे काम लें, उनके ऊपर इनके रोक रखने, इनको मशक्कत में डालने, इनसे काम लेने और दीगर मिन जुमला के लिए इरशाद बारी ताला हुआ कि हजरत सुलेमान अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस पर कोई बेगैर हिसाब न रखा, बल्कि ला मतना ही अता किया। और बेगैर हिसाब में एक माने तो ये समझ आते हैं कि इतना अता किया कि जो अताओं की इंतहा है। और इसी तरह बारी ताला के इस फरमान से ये समझना चाहिए कि जब अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाता है, तो वहां कदगन लगाना और किसी वो आयत जो रब ताला ने अपनी शान के लिए गैब की खबरों और अपने इख्तियार के हवाले से बयान और इरशाद फरमाई है, उसको लेकर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहना कि नहीं वो हदें हैं, तो कुरान अजीम ने कहा कि ओ अमसिक बिगैर हिसाब, और उन्हें रोक रखे और उन्हें बेहिसाब दिया। और साथ ये भी कि इन रोक रखने और इन खिदमात के लेने और इनकी तवज्जो हासिल करने पर हजरत सुलेमान अला नबील करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कोई हिसाब न रखा, यानी उनसे इसकी पूछ न रखी। और कहा कि उनके लिए हमारी कुर्ब में बेशक अच्छा ठिकाना है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो, कुरान अजीम ने कहा, और जब शैतान ने उनको जिस सूरत हाल से दो चार किया और जब रब ताला ने अपनी रहमत खास करना चाहिए तो कहा कि आपके पाँव के नीचे से पानी के चश्मे बहें और उनसे गुस्ल करो और सेहतियाब हो, और अल्लाह ताला ने उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिया। और हजरत अल्लाह अकबर अय्यूब अला नबील करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो हालत बीमारी में अपनी एक जोजा मोहतरमा के बारे में कसम खाई थी किसी अम्र में कि अगर वो फला बात का जवाब ना दे सके, तो बाज ने इसको उन जोजा मोहतरमा के बालों से तशबीह दी है। लेकिन जो भी मामला रब ताला के इल्म में पेश आया उस पर हजरत अय्यूब अला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खाई। तो कुरान पाक ने
इरशाद फरमाया कि वखुज़ बियदिका ज़िग़्सन फ़द्रिब बिही वला तहनस, और फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले कर इससे मार दे और कसम न तोड़। तो इन्होंने कोई मुतअद्दिद, बास कहते हैं 100 या कम बेश जो भी इनको दुर्रे या कोड़े लगाने की कसम खाई थी, तो रब ताला ने उसका रास्ता ये इरशाद फरमाया इस आयत में कि अपने हाथ में एक झाड़ू पकड़ लो और उसकी वो तीलियां उनको तसव्वुर कर लिया जाए गोया वो तरीका के उनको वो मार दें ताकि आपकी कसम पूरी हो जाए। इसलिए कि जो उन्होंने खिदमात सरंजाम दी थी उन पर उनके लिए रियायत भी बारी ताला के पास और खुद हजरत अय्यूब अला नबी अल करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पास थी। इससे ये भी पता चला कि मजाज में अगर कुछ तेजी तलखी और कोई ऐसी बात आ जाए मासूम अनिल खिता अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम के, तो उनके लिए भी तखफीफ के लिए जो तरीकाकार उनकी अजवाज के लिए या उनकी जोज के लिए उनके घर वालों के लिए वो रब ताला ने इरशाद फरमाई, जिससे ये पता चलता है कि तबीयतों का गरा खातिर होना या नर्म खातिर होना ये इंसानी जो रवैये हैं उनकी जिबिल्लत का और उनकी बुनियादी आदत का हिस्सा है। और फिर इरशाद फरमाया कि ये साबिर थे, बहुत अच्छा बंदा और रजू लाने वाले। और फिर कहा कि वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब, कि फिर किताब में जिक्र करना है इब्राहीम और इसहाक अलैहिमुस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का, वो कुदरत वाले और इल्म वाले थे। औलिल ऐदी वल अब्सार, वो कुदरत वाले इख्तियार वाले थे। अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को इख्तियार देता है उनके बारे में हल्की बात करना कुरान अजीम की इन आयात से पता चलता है कि ये दुरुस्त नहीं। तौहीद बारी ताला पे ईमान लाने वाले के लिए ये तकाजा है कि जो तौहीद बारी ताला पे और सिफात बारी ताला पर ईमान लाए वो उसकी अताओं और उसकी मेहरबानियों और मखलूक में उसकी तरफ से दी गई सहूलतें और नेमतें और करम नवाजियां उनको भी जहन में रखकर ईमान को पुख्ता रखे, और किसी तरह से भी कोई ऐसी हल्की बात इन शख्सियात इन हजरात बिलखुसूस अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बारे में उसके वहमो गुमान से न गुजरे कि जिसकी वजह से उसका ईमान अकारत हो। और इस पर नबी रहमत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगे आयात आती हैं, अपने मकाम पर उन मज़ामीन को बयान करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। और कहा कि इन बंदों को जिनका जिक्र हुआ इब्राहीम इसहाक याकूब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, हमने इन्हें एक खरी बात से इम्तियाज बख्शा कि वो इस घर की याद, और बेशक वो हमारे नजदीक चुने हुए पसंदीदा है, यानी काबतुल्लाह की याद ये ऐसी खरी बात है जिसकी वजह से वो मुमताज हुए दीगर में। और कहा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम और यसा और जल किफ्ल अलैहिमुस्सलाम का जिक्र, और ये सब अच्छे और ये नसीहतें मानने वाले और मुत्तकी और परहेजगार, उनका ठिकाना भला बसने के बाग और दरवाजे जब खुले इनमें तकिया लगाए, इनमें बहुत से मेवे और शराब मांगते हैं, और उनके पास वो बीबियां हैं कि अपने शोहर के सिवा और की तरफ आंख नहीं उठाती। एक उम्र की यानी एक खास उम्र जिससे अहले जन्नत के दिल बहलें और उन हूरो कसूर के भी दिल बहलें। रब ताला ने ये खास इंतजाम अहले जन्नत के लिए रखा और उसका तज़किरा कुरान अजीम में किया, और कहा कि ऐसा रिस्क उन्हें दिया जाएगा जो कभी नहीं खत्म होने वाला। और इसके मुकाबले सरकशों को खबरदार किया रब ताला ने अपनी इन आयात बय्यनात में कि इनकार वाले और सरकशी करने वाले और तकब्बुर करने वाले और शिर्क करने वाले उनके लिए ठिकाना जहन्नुम है। तो क्या ही बुरा बिछोना है ये जो जहन्नुम है, और उसमें चखेंगे खोलता पानी और पीप और इसी शक्ल के और जोड़े, और उनसे कहा जाएगा तुम्हारे साथ धसी पड़ती हैं जो तुम्हारी थी। जब वो ये सवाल करेंगे कि वो सारे लोग जो शिर्क पर हमें आमादा करते और तेरी इबादत के सिवा बुतों की पूजा पर आमादा करते, तो उनका जवाब वहां पे ये होगा, कुरान अजीम ने बताया कि वो तुम्हारे साथ ही धसाए जा रहे हैं दोज़ख की आग में। और फिर जब तंग जगह से खुली जगह की बाबत वो ख्वाहिश करेंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि तुम भी तंग जगह पे हो और तुम्हारे साथ वाले जो जहन्नमी हैं वो भी तंग जगह वाले हैं। और दोस्तियों का बाहम झगड़ा जो होगा
उसके हवाले से आयात बैयनात के जरिया कुरान अजीम ने ये रहनुमाई की कि अहले नार को, अहले दोज़ख को डर सुनाया जाए ताकि वो इनकार को तर्क करके, शिर्क को तर्क करके और मोहब्बत रसूल और इसके रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ने वाले वापस बारी ताला की तौहीद और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा तैयबा और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में आए और फरमाया कि आप फरमाइए कि मैं डर सुनाने वाला हूँ और माबूद कोई नहीं है लेकिन अल्लाह है जो सब पर गालिब है, वो आसमान और ज़मीन का मालिक है और बख्शने वाला है, बड़ी खबर है उसके पास। और फरिश्तों ने फरमाया, जब फरिश्तों से मट्टी के बारे में दोबारा इरशाद फरमाया कि वो गुदी हुई मट्टी से जब इंसान को पूरा किया तो कहा कि जब मैं इसमें रूह फूंकूं तो तुम इसे सिजदा करो, और उनके सिजदा की और इबलीस की और उसको लानती करार देने की और उसको जमीन की तरफ निकाल देने की और उसकी मोहलत मांगने की और अपने बंदों के बारे में ये इरशाद कि वो तुम्हारे दाम में नहीं आएंगे जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे, इस सब की तफसील इन मज़ामीन में इरशाद फरमाई और फरमाया कि और ज़रूर एक वक्त के बाद तुम इसकी खबर जानोगे। तो फरमाया कि जो कुछ हम बता रहे हैं एक वक्त आने वाला है, करीब है, कि जिसमें फिर इस सब खबरों को अपनी आंखों से देखोगे। यहाँ सूरा सौद के मज़ामीन खत्म हुए और सूरत-उज़-ज़ुमर के मज़ामीन शुरू हुए। 23वां पारा है और सूरत-उज़-ज़ुमर मक्किया है और कहा कि ये किताब उतारना अल्लाह इज्जत व हिकमत वाले की तरफ से है, आपकी तरफ की तरफ ये हक के साथ उतारी गई। और यहाँ पे हक के साथ उतारने के जितने मानी मकसूद और मुमकिन है उन सब को कारी कुरान को जी में उतारना चाहिए। और कहा कि हाँ, खालिस अल्लाह की बंदगी की जाए और जिन्होंने इसके सिवा और वाली बना लिए, यानी अल्लाह ताला को छोड़कर, और अल्लाह ताला ने जिनके लिए हुक्म इरशाद फरमाया जो अगली आयत में भी आता है और पहले भी गुजरा, उनको छोड़कर, उनकी इत्तबा और फरमाबरदारी छोड़कर रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इखलास और मोहब्बत और इश्क की जुस्तजू छोड़कर जिन्होंने दूसरी राह अपनाई, तो उनके बारे में उस कहार और जब्बार ने वईद इरशाद फरमाई और कहा कि जमीन और आसमान उसने हक बनाए और दिन रात को, रात दिन को लपेटते हैं, और उसने सूरज और चांद बनाए, और फिर अल्लाह ताला ने इज्जत और हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ ये सब रोज़े आफरीनश से इसकी तख्लीक की। और इबादत तो न सूरज की है न चांद की है बल्कि अल्लाह वादहू ला शरीक की है। और कहा कि ए लोगो, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक जान से बनाया, फिर जोड़ा पैदा किया, फिर चौपाइयों में 8 जोड़े उतारे और तुम्हें माओं के पेट में बनाता है, और तरह एक तरह के बाद और तरह 3 अंधेरों में। ये अल्लाह तुम्हारा रब, उसकी बादशाही या उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, फिर कहाँ फिरे जाते हो। तो वादहू ला शरीक ने अपनी वाहदानियत पर ये दलाइल इरशाद फरमाए और कहा कि नाशुक्री ना करो, और अल्लाह बेनियाज है ऐसे लोगों से जो नाशुक्री करते हैं, और शुक्र करने वाले वो उसके पसंदीदा हैं। और क़यामत का दिन होगा, कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी, और रब की तरफ सब ने फिरना है, और वो दिलों की बात जानता है, और वो जानता है कि उसके पास से कोई नेमत दी जाए तो उसे तुम भूल जाते हो, और जिस लिए पहले पुकारा था और अल्लाह के लिए बराबर वाले ठहराने लगते हो। तो जब तकलीफ में होते हो, तो जब उसको पुकारते हो वो नेमत देता है तो उसे भूलते हो, और फिर उन्हीं को पुकारते हो जो उसके शरीक यानी बुत जो तुमने अपने हाथों से बनाए, या जो दुनिया में तुम सूरज और चांद देखते हो, दरख्त देखते हो, और आंधी देखते हो, तूफान देखते हो, और उनमें से किसी को भी ताकत समझकर उसकी इबादत करने लगते हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए कि दोज़खियों में होना दुरुस्त रास्ता नहीं है, और फरमाया कि जो फरमाबरदार हो और जिसकी घड़ियां सजदे में और क़याम में और आखिरत से डर में गुजरे, वो अपने रब की आस लगाए हुए हो, तो क्या नाफरमानों जैसा वो हो जाएगा? नहीं, इसको एजाज है, इसको इज्जत है, और इसको एहतराम है, और इसकी बेहतरीन मेहमान नवाजी है। और फरमाया कि अगर मुझसे नाफरमानी हो जाए तो मुझे अपने रब से एक बड़े दिन के अजाब का डर है। और ये इरशाद फरमाना गोया अपने बारे में
इस बात का अंदेशा जाहिर करना नहीं है, बल्कि अपने सुनने वालों को समझाना है कि नाफरमानी नाफरमानी है और जो फर्माबरदारी है वो फर्माबरदारी है और उसी को इख्तियार करने में भलाई है। और फिर जहन्नम वालों का ये तस्करा कि उनके ऊपर आग के पहाड़ हैं, और कहा कि खुशखबरी सुनाओ उन बंदों को जो मेरी तरफ आते हैं और तौहीद बारी तआला को समझते हैं और कान लगाकर इनका सुनना, जो कुरान अजीम को सुनते हैं तो उनको अगर हदायत न मिले तो वो अकल नहीं रखते और उन पर अजाब साबित हो चुका है। और फरमाया कि अल्लाह का वादा, अल्लाह वादा खिलाफ नहीं फरमाता। और इरशाद बारी तआला हुआ कि वो जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, अपने रब के नूर की तरफ वो आता है, तो वो जिसका तंग कर दिया वो ज़लालत और गुमराही में है। तो ऐसे दोनों एक जैसे हो सकते हैं? यकीनन इरशाद बारी तआला है इन मज़ामीन में कि ऐसा नहीं हो सकता। और फरमाया कि नजात वाले जिन्होंने अगलों को झुठलाया, अगलों ने जिनको झुठलाया, वो नजात वालों की तरह कि जिन्होंने तामील की और ताबीर की और बात मानी और सर रखा और मुसलमान हुए, उनकी तरह नहीं हो जाएंगे। अहम तरीन उन्वान आता है। और इन आयात से आगे जब आप देखते हैं कि जब ये बात गुजर चुकी कि अगर हम इस कुरान को अजमी उतारते तो ये कहते कि रसूल अरबी और किताब अजमी और इस तरह की सारी बातें जब गुजर चुकी, तो फिर इरशाद फरमाया कि, और इरशाद किस उसमें फरमाया माहौल में, और शान नज़ूल क्या है? कुफार ने कहा कि अच्छा, मौत और हयात के बारे में कुरान अजीम ने इन मज़ामीन में ये भी इरशाद फरमाया रब ताला ने कि जिनको नींद देते हैं तो चाहें तो उनको उठा देते हैं, यानी नींद एक तरह की मौत है। और फिर जिनको नींद में ही सुला दें तो फिर उन्हें अपने वक्त मुकर्ररा पर उठाएंगे। और दीगर ऐसे भी हैं जिनको बाद किसी और अंदाज में वो मौत दी जाती है। तो अब यहाँ पे इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून वाली आय बैयना को समझने की जरूरत है कि वो लोग घटिया सोच और रजालत और जलालत के उसमें घटाटोप में है कि जो दूसरों की वफात को और दूसरों की मौत को आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम की वफात और वसाल और वस्ल की घड़ी के साथ तशबीह देते हैं। वाकया ये है कि रब ताला ने ये जो आयत नाजिल फरमाई कि आप फरमाइए कि बेशक तुम्हें भी इंतकाल फरमाना है और उनको भी मरना है। इसका पस मंजर ये है कि कुफार ने यक जुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि अच्छा इससे पहले, चूंकि ये बात जहन में रखने की जरूरत है कारी कुरान के कि शायर कह लिया, मजनून कह लिया, जादूगर कह लिया, और इस तरह की तोहमतें और इस तरह की बेकार बातें वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जड़ देने की कोशिश कर ली। और जब इन सारी कोशिशों में नाकाम और नामुराद हुए और फजल रब्बी से कुरानी अहकामात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नूर और पैगाम खैर वो बढ़ता चला गया, तो उन्होंने फिर ये तदबीर की और ये कहा और ये सोचा क्या कि इनकी वफात का इंतजार करो, यानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का इंतजार करो। ये किसका कलाम है? ये कुफ्फार मक्का का और मुशरिकीन का और मुखालिफीन का, मुआंदीन का और गिरा किए हुओं का और दिल मुर्दा किए हुओं का और आंखों की बसारत ले जाए गए हुओं का और सुनना बेकार कर देने हुओं का, यानी उनके कोतकों और उनके शिर्क और उनकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की वजह से जो कैफियत थी, उनकी ये कैफियत कि जब वो इन सब से कामयाब ना हुए तो उन्होंने कहा कि इनकी वफात का इंतजार करो। तो उस पर ये आयत आई कि इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, बेशक तुम्हें इंतकाल फरमाना है और उनको भी मरना है। अब कहना यह है इस ज़ैल में कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले मुबारका को दीगर अंदाज में लेना, ये कुरानी तालीमात, ईमानी तकाज़ों और रब ताला की महबूब हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان کے لیے توہین آمیز رویہ ہے بلا شبہ اور بلا شک۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ نے وفات فرمائی، آپ نے وصال فرمایا اور آپ نے وہ برزخی زندگی اور وہ قبر نور کی زندگی اختیار کی جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے پسند فرمائی۔ لیکن اس آیت سے ہلکے انداز میں اور ہلکے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کہنا یہ انتہائی ظالمانہ رویہ ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا اس سے اگلی آیت میں، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ یہاں پہ 24واں پارہ شروع ہوتا ہے اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور حق کو جو جھٹلائے، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں ڈر والے۔ اور وقت کا محدود ہونا پیش نظر ہے، کوشش ہے کہ نماز عصر کی جو آذان ہے اور خواتین و حضرات آپ کے وضو کی تیاری جو ہے اس سے پہلے جو مضامین آج ممکن ہو سکیں وہ خدمت میں عرض کیے جائیں اور باقیوں کو اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھا جائے۔ اور یہ ڈر سنانے والے جو کیفیت ہے اور ڈرائے ہوں کہ میں سے جن کی ایمان لانے کی کیفیت ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کی جو کیفیت ہے وہ ساری ان آیات میں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے اور بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔ تو جو بھروسہ کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک پر بھروسہ کریں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کفار کو ان کی بات کے جواب میں ارشاد فرمایا تو اسے اسی طرح لینا چاہیے۔ وہ آیات آگے آتی ہیں جن میں اس سے بڑھ کر جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشادات ہیں وہ ہم انشاءاللہ رحمان جو خواتین و حضرات اس وقت کی نشستوں میں شامل ہوں گے ان کے لیے گزارش کریں گے۔ اور جب تک ہم سارے قرآن عظیم کے تمام مضامین کو جس حد تک ہمارے بس میں ہو ممکن ہو، رب تعالیٰ چاہے سراج منیر کی صفت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان رہیں، اس کو نہیں دیکھے سنیں گے تو کسی ایک آیت سے دوسری کا تقابل کرنا وہ درست نہیں ہوگا۔ ہر بات اپنے موقع کے مطابق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، بجا ارشاد فرمائی اور اس پر ایمان لانا حق ہے۔ اور جو نہیں مانتے ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا اور فرمایا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، خود کو تکلیف میں نہ مبتلا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اور انہوں نے اللہ کے مقابلے کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں۔ تو آپ فرمائیے کہ ملک اللہ تعالیٰ کی ہے اگر تمہیں عقل ہو، اور فرمایا کہ تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اس کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ اور فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کا وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ظاہر کا اور باطن کا جاننے والا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی کمائی ہوئی برائیاں قیامت میں ان پر کھل جائیں گی، اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے اس سچے رب کو، نعمت دی جاتی ہے تو اس کو انکار کرتا ہے۔ یہ انکار والوں کے بارے میں ارشاد ہوا۔ اور فرمایا کہ وہ بندے جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہ ایمان والے جو کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے ان کے لیے توبہ کا راستہ اور ان کے لیے مغفرت کی وعید، مغفرت کی خوشخبری اور مغفرت اور بخشش کی عطائیں اور انوار ان کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ رب کی طرف رجوع لانا اور اس کے حضور گردن رکھنا یہ اصل کام ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اچانک عذاب آ جائے اس کی تمہیں خبر تو نہیں ہے، تو اس لیے اس کی باتوں کا ہنسی بنانا یہ درست راستہ نہیں ہے۔ اور ڈر والوں کو اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے، اور دوسری طرح کے لوگ عذاب دیکھتے ہیں تو پھر جا کر انہیں یقین ہوتا ہے، اور اس وقت کا یقین ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ہر چیز کا مختار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں
जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वही नुकसान में है। और कहा कि आप फरमाइए तो क्या अल्लाह के सिवा दूसरों को पूजने को मुझसे कहते हो ए जाहिलो, और बेशक वही की गई तुम्हारी तरफ और तुमसे अगलों की तरफ कि ए सुनने वाले, अगर तूने अल्लाह का शरीक किया तो जरूर तेरा सब किया धरा अकारत जाएगा और जरूर तू हार में रहेगा। यानी वही के जरिया अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम के अक़वाम को और उनकी मिल्लतों को और उनके दो अदवार को ये खबरें अता की गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जरिया क़यामत तक के अहले इस्लाम को ये खबरें अता की गई। और फरमाया कि वो जिन्होंने अल्लाह की कदर न की जिस तरह उसका हक था, और क़यामत के दिन सब जमीनों को वो समेट देगा और आसमानों को लपेट लेगा और उनकी शिर्क से उसे पाकी है। और इरशाद फरमाया कि शोर फौंका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे जितने आसमानों में है और जितने जमीन में है, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह चाहे। तो इसे पता चलता है कि अल्लाह की चाहत तो सबसे ज्यादा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, तो हो ना हो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरशाद फरमाया हो, और अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं इरशाद फरमाया हो तब भी हम इस पर ईमान लाते हैं। और यकीनन आप चूंकि मखलूक में सबसे बुलंद दर्जा हैं तो ईमान का तकाजा और नूर का तकाजा यही है कि जी और ईमान आप ही की तरफ मुतवज्जे करे कि ये जो सब बेहोश हो जाएंगे सवाए उसको जिसको अल्लाह न चाहे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात नूर हो सकती है। और कहा फिर दोबारा शोर फौंका जाएगा और रब ताला के नूर के जलवे उनका तस्करा हुआ और ईमानियात का तस्करा हुआ। और यूं रब ताला ने फरमाया कि तुम देखोगे कि फरिश्ते अर्श के आसपास वो हल्का बनाकर खड़े हैं और उसकी तारीफ बोलते हैं और उसने सच्चा फैसला फरमा दिया है। और कहा जाएगा सब खूबियां अल्लाह को जो सारे जहान का रब है। यहाँ से आगे सूरतुल मोमिन शुरू होती है, ये भी मकिया है। और फरमाया कि ये किताब का उतारना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है जो इज्जत वाला है और वो गुनाह बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है और सख्त अजाब करने वाला है, बड़े इनाम वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। यानी मुख्तलिफ हालतों का जिक्र इन आयात में इरशाद फरमा दिया। और कहा कि वो फरिश्ते जो अर्श उठाते हैं और दोज़ख के दरोगा फरिश्ते और जन्नत के मकाम पर जिनकी ड्यूटीज हैं उन फरिश्तों का जिक्र हुआ कि जहन्नुम वाले कहेंगे कि तुम्हारे पास रसूल ना आए थे, और उनको जो जहन्नमी है उन्हें अज़ाब के अंदाज में दोज़ख में डाला जाएगा और जन्नत के दरवाजों के ऊपर सलामियां होंगी अहले जन्नत के लिए और अहले ईमान के लिए। और इरशाद फरमाया कि बुलंद दर्जे देने वाला अर्श का मालिक ईमान की जान वही डालता है अपने हुक्म से अपने बंदों में जिस पर चाहे कि वो मिलने के दिन से डराएं, और जिस दिन वो बिल्कुल जाहिर हो जाएं अल्लाह पर उनका कुछ हाल छुपा न होगा। और फरमाया कि आज किसकी बादशाही है, क़यामत होगी और रब ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज किसकी बादशाही है, फरमान होगा एक अल्लाह जो सब पर गालिब है उसकी बादशाही है। इसीलिए अमूम में भी हम जब बात करते हैं, आज हम कुरान अजीम के मज़ामीन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हुकूक की और आवाम की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि रोज़े क़यामत से डरना चाहिए, हुक्म वालों को भी डरना चाहिए, मातहतों को भी डरना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को भी डरना चाहिए, और बादशाहों और आलमी जो सितम ज़रीफियाँ हैं उनकी ताबेदारी करके लोगों पर अरसा हयात तंग करने और उन्हें परेशान खातिर करने वालों को भी डरना चाहिए कि वो दिन आता है कि जिस दिन वो कहेगा कि सब पर मैं गालिब हूँ और मैं कहार हूँ और मैं बादशाह हूँ और सब बादशाहों का मैं बादशाह हूँ, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और फिर इरशाद फरमाया कि ये जो दिल हैं ये गलों के पास आ जाएंगे क़यामत की इस खबारी को देखकर, गम में भरे होंगे और जालिमों का न कोई दोस्त होगा और ना कोई उनका सफारशी होगा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दरमियान वो सच्चा फैसला फरमा देगा। और इरशाद बारी ताला हुआ कि बेशक अल्लाह ही सुनता और देखता है, तो क्या उन्होंने ज़मीन में सफ़र न किया कि वो देखते कि पहले जो निशानियां हैं वो क्या हुई और किस तरह इनकार वालों को अजाब दिया गया। और फरमाया कि वलक़द अरसलना मूसा
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ اور یہاں پہ اس شخصیت کا، اس صاحب نور اور صاحب علم کا ذکر ہوا جو فرعون کی قوم سے تھے اور صاحب ایمان تھے، تو انہوں نے جو مکالمہ کیا فرعون سے اور اپنی قوم سے، اس کا تذکرہ قرآن عظیم نے ان آیات اور ان مضامین میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس بندہ کے ساتھ انہوں نے بحث کی، اور جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور فرعون بولا اے حامان اونچے محل بناؤ۔ یہ وہ نہ ہو، یہ جو اہرام مصر ہیں اونچے اونچے، اسی وقت کے ہیں۔ بہرحال ہماری توجہ رہنی چاہیے قرآن عظیم کی طرف کہ اس نے کہا اونچے محل بناؤ، میں جھانک کے دیکھوں کہ موسیٰ علی نبی الکریم علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب کو، تو وہ کیا جھانکتا، اور وہ ایمان والا نہیں تھا۔ حساب اس کے اوپر آ پہنچا اور اس نے کفر اور شرک کیا اور اس کی دعوت دی دنیا میں، تو اس کو دوزخی اور اس کے ماننے والوں اور باطل کو ماننے والوں کو دوزخی کیا۔ تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی اس مسلمان کو بھی اور حضرت موسیٰ علیہ نبی الکریم علیہ السلام کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی اور ان کی قوم کو بھی۔ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو عذاب ان پہ جاری ہے۔ اور پھر قیامت کا احوال بیان کیا قرآن عظیم نے، اور یہ احوال بیان کر کے اس کو دیگر کے لیے نصیحت قرار دیا۔ سورۃ المومن کی 24ویں پارے کی ان آیات سے ہمیں آگے بڑھ کر 25ویں میں داخل ہونا تھا، لیکن عصر کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ بات کو سمیٹنا پڑے گا، اور انشاءاللہ رحمان کل تھوڑا پہلے آ کر آپ کا زیادہ وقت لینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے خواتین و حضرات آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تاکہ ان مضامین کی تکمیل اور اس کے ذریعے ہمارے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے آسودگی نازل ہو۔ دعا ہے رب کریم ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمارے گزرے ہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، جنہیں اونچی سلام کہا جائے اور جن کے قریب جا کر ان کے کانوں میں سلام کہا جائے، جو اہل مزار ہیں، جو اہل قبرستان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور سب کی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اور ان ساری دعاؤں جو آپ سب کی اس وقت لائیو براڈ کاسٹ میں موجودگی میں ہیں، ان سب پر آمین کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔